तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोज़ के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोज़ मौजूद हैं। Students, I am taking all these contents of this chapter from the Punjab textbook board. Previously, we discussed about the unit number 11, noise in the environment, शोर माहौल में शोर की आलूदगी. Now I am giving you some brief introduction about the noise. That what is noise? Noise pollution is a form of pollution which has become very deadly nowadays. This pollution is increasing only and creates an unsafe environment. Noise pollution is when the level of noise increases more than the normal level. When the amount of noise exceeds, it becomes dangerous for living beings. Moreover, these unpleasant sounds cause several disturbances and create an imbalance in the environment. In other words, high volume noises are abnormal. As the world is advancing at a rapid rate, so is noise pollution. Technology has made things easier for people by creating appliances and devices for almost everything. You want to mix or grind something, it can be done with a mixer or blender. You are feeling hot, simply turn on the AC or cooler. Do you want entertainment at home? You can watch television or play music. However, people don't realize this comfort comes with the harmful effects too. All the mentioned appliances contribute to noise pollution. They disturb the natural rhythm of life and fall in the category of pollutants. As the world is turning to technology for their comfort, it is at the same time harming us. The industries, no matter how big or small, contribution to noise pollution. The equipment they use like compressor, exhaust fans, generators and more produce a lot of noise. Similarly, the ever increasing use of automobiles is a major cause of this pollution. Not only automobiles but other transport vehicles like airplane, buses, bikes, trucks and more also are a part of it. People honk unnecessarily in the traffic and listen to loud music on the way, which create high level of noise. Furthermore, social events like marriages, parties and religious functions in places like clubs, pubs, temples, halls and more create a lot of nuisance in the residential areas. In addition, the construction activities like mining, the building of flyover, bridges and more also produce great noise. Though it may not be talked about much, noise pollution has a serious impact on the lives of living beings. Firstly, the noise pollution causes a number of hearing problems. High level of noise damage the eardrum, the sometimes even cause the loss of hearing. Similarly, it reduces the air sensitivity to the sound that the human body requires to regulate our rhythm of the body. Moreover, it also affects our psychological health. It may not be evident instantly, but in the long run, it changes our behavior. When your sleep gets disturbed or you constantly have headache because of too much noise, you tend to experience fatigue and even migraine. In short, we must make people aware of the impact of noise pollution. Likewise, we must encourage them to adopt ways that do not contribute to noise pollution. If everyone starts doing the same on the individual level, we will surely be able to reduce noise pollution to a great extent. So students, this was a brief introduction about this chapter. Now we move on to the exercise of this chapter. First one is glossary. In glossary, we discuss about the difficult words related to the chapter. First one is distract. Distract मतलब परेशान करना, disturb करना. Immense बहुत ज़्यादा, huge. Mushrooming तेज़ी से बढ़ना, growing.
एक्सेसिवली बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली, पेट्रोलिंग गश्त, गार्डिंग, इंसोमनिया बेख्वाबी, स्लीपलेसनेस, इरिटेंट परेशान कुन, एनोइंग. Now there is a question related to the comprehension, cause and effects of solution. यहाँ पर कुछ टेबल बना दिए गए हैं, एक में कॉजेज़ लिखने हैं, एक में इफ़ेक्ट्स लिखने हैं और दूसरे में सॉल्यूशन लिखने हैं. ठीक है, यानी कि नॉइज़ पोल्यूशन की कॉजेज़ क्या हैं. फर्स्ट वन इज़ हॉन्किंग. ठीक है, हॉर्न बजाना इसकी कॉज है. तो इसका इफ़ेक्ट क्या होता है कि इरिटेबिलिटी यानी कि परेशानी जो है वो बढ़ जाती है. और इसका सॉल्यूशन क्या है, स्ट्रिक्ट रूल्स टू चेकिंग हॉन्किंग. हॉर्न बजाने के लिए एक स्ट्रिक्टली रूल्स होने चाहिए कि कहाँ पर हॉर्न बजाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो हॉर्न बजाया जाए, अदरवाइज़ ना बजाया जाए. सेकंड कॉज है कंस्ट्रक्शन वर्क. इसका इफ़ेक्ट होता है मेंटल फैटिग, जहनी कोफत होने लग जाती है उन इलाकों में जहाँ पर बार बार तमीराती काम हो रहा होता है. सो द सॉल्यूशन इज़ स्पीड अप कंस्ट्रक्शन वर्क, कि उस काम को जल्द अज जल्द ख़त्म किया जाए. थर्ड वन, इररिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी का गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल, उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है कि वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है. ठीक है, और सॉल्यूशन इसका क्या है, रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, कि हमें टेक्नोलॉजी का ज़िम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए. नाउ मूव ऑन टू द बी क्वेश्चन रिलेटेड टू द कम्प्रीहेंशन. फर्स्ट वन इज़ हाउ डू यू डिफाइन नॉइज़ पोल्यूशन. नॉइज़ पोल्यूशन को आप कैसे डिफाइन करेंगे. सो द आंसर इज़ we define noise pollution as any form of noise that disrupt the normal functioning of life. ऐसी शोर की आलूदगी या ऐसा शोर जो किसी भी शक्ल में हो और हमारी ज़िंदगी के मामूल के काम में खलल डाले. सेकेंड क्वेश्चन, हाउ इज़ ट्रांसपोर्ट आर सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन. ट्रांसपोर्ट कैसे शोर की आलूदगी का ज़रिया है. सो द आंसर इज़ ट्रांसपोर्ट becomes a source of noise pollution due to unreasonable honking by a driver. ट्रांसपोर्ट जो है वो शोर की आलूदगी का ज़रिया ऐसे बनता है कि जब ड्राइवर जो है बग़ैर किसी वजह के हॉर्न बजाना शुरू कर देते हैं तो ये नॉइज़ पोल्यूशन का सबब बनती है. थर्ड क्वेश्चन, हाउ इज़ कंस्ट्रक्शन वर्क अ कॉज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन. तामीराती काम कैसे शोर की आलूदगी का बायस बनता है. सो द आंसर इज़ डिफरेंट पीसेज ऑफ इक्विपमेंट यूज्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट प्रोड्यूस अ ग्रेट नॉइज़. एज कंस्ट्रक्शन वर्क इन अर्बन एरियाज इज यूजुअली स्लो एंड टाइम कंज्यूमिंग, इट बिकम्स अ बिग सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन. तामीराती मकामात पर इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ आलात बहुत ज़्यादा शोर पैदा करते हैं. चूँकि शहरी इलाकों में तामीराती काम अमूमन सुस्त और वक्त तलब होता है, इसलिए ये शोर की आलूदगी का बहुत बड़ी वजह बनता है. फोर्थ क्वेश्चन, हाउ इज़ यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी कॉजिंग नॉइज़ पोल्यूशन. टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे शोर की आलूदगी का सबब बन रहा है. इररिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ कॉजिंग नॉइज़ पोल्यूशन. People use electricity generator excessively and listen to loud music or TV on a loud volume, thereby putting their neighbor in a great trouble. टेक्नोलॉजी का गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल शोर की आलूदगी का सबब बन रहा है. लोग बकसरत बिजली का जनरेटर इस्तेमाल करते हैं और ऊंची आवाज़ में मौसीकी या टीवी की आवाज़ सुनते हैं. इस तरह अपने पड़ोसियों को भी मुश्किल में डाल देते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन, वाई इज़ नॉइज़ हैज़ार्डस फॉर ह्यूमन हेल्थ. हैज़ार्डस होता है बेटा नुकसानदेह, कि शोर की आलूदगी जो है वो कैसे इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक है या ख़तरे का बाइस है. नॉइज़ इज़ बायोलॉजिकल स्ट्रेसर एंड कैन कॉज अग्रेशन, हाइपरटेंशन, हाई स्ट्रेस लेवल्स, हेयरिंग लॉस, रेस्टलेसनेस, डिप्रेशन एंड इंसोमिनिया. शोर जो है वो हयातियाती तनाव पैदा करने का बाइस बनता है. ये जारियत और मतलब कि हाइपरटेंशन, जो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है, उससे हाई स्ट्रेस लेवल, तनाव जो है उसकी सतह बुलंद हो जाती है, बेचैनी बढ़ जाती है और बेख्वाबी का भी बाइस बनता है. ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ प्रिकॉशंस मे रिड्यूस नॉइज़ कमिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. प्रिकॉशंस होता है बेटा एहतियाती तदाबीर. हम किस किस्म के एहतियाती तदाबीर जो है करने से शोर की आलूदगी कम कर सकते हैं. द प्रिकॉशंस डैट मेक बी टेकन टू रिड्यूस नॉइज़ पोल्यूशन कमिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर एज अंडर्स. First one is we should switch off our mobile or put them on silent mode when we enter offices, hospital and other public places. सबसे पहले हमें अपने मोबाइल बंद कर देने चाहिए जब, या उन्हें साइलेंट पर लगा देना चाहिए जब हम दफातर में, हस्पतालों में या दूसरी अवामी जगहों पर दाखिल हों. सेकेंडली, वी शुड लिसन टू टीवी और टेप रिकॉर्डर ऑन लो वॉल्यूम. हमें टीवी या टेप रिकॉर्डर की आवाज़ हल्की आवाज़ में सुनना चाहिए. थर्ड वन, वी शुड अवॉइड यूजिंग इलेक्ट्रिक जनरेटर इन रेजिडेंशियल एरियाज़. रहायशी इलाकों में बिजली के जनरेटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रिक जो जनरेटर होते हैं उनकी आवाज़ बेटा बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है, जिसकी वजह से वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे होते हैं. नाउ वी मूव ऑन टू द
See question related to the comprehension. In paragraph 3, 4, 5, 6 and 7, the writer is describing the cause, effects and solution of noise pollution. Identify and summarize this. हाँ जी, वो कह रहे हैं पैराग्राफ नंबर 3 में 4, 5, 6 एंड 7 के अंदर जो चैप्टर के अंदर कॉजेज़, इफ़ेक्ट्स और सॉल्यूशन बताए गए हैं नॉइज़ पोल्यूशन के, उनको समराइज़ करना है अपने वर्ड्स में। देख लेते हैं कैसे। सो द आंसर इज़ द कॉजेज़ ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन मेंशन्ड इन दिस पैराग्राफ्स आर एक्सेसिव। अब हम कॉजेज़ को पढ़ने लगे हैं। एक्सेसिव यूज़ ऑफ व्हीकल, हॉर्न्स, इक्विपमेंट यूज्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड इररिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, दीज सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन डैमेज। अब यहाँ पर हम इफ़ेक्ट्स पढ़ने लगे हैं, ये इफ़ेक्ट्स हैं यहाँ से। These sources of noise pollution damage our environment as well as our health. We can reduce the noise pollution. अब हम यहाँ पर solution start हो गया we can से। We can reduce the noise coming from these sources by making strict rules to checking honking, speeding up construction work by using technology responsibly. ठीक है, responsibly. शोर की आलूगी के असबाब ये हैं कि वो गाड़ियों के हॉर्न्स का बकसरत इस्तेमाल, आलात जो तामीर की जगहों पर इस्तेमाल होते हैं, बिजली के आलात का गैर ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल वगैरह ये हैं। शोर की आलूदगी के माखज़ हमारे अभी हम इफ़ेक्ट पढ़ रहे हैं, इनके असर पढ़ रहे हैं। ये शोर की आलूदगी जो है ये हमारे माहौल को नुकसान पहुँचाती है, इस तरह हमारी सेहत को भी नुकसान पहुँचती है। अब हम यहाँ से पढ़ने लगे सॉल्यूशन कि हम हॉर्न के इस्तेमाल को रोकने के लिए सख्त कवानीन बनाकर तामीरी काम को तेज़ करके और टेक्नोलॉजी को ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल में लाकर इन ज़राए से आने वाले शोर को कम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, देयर इज़ अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द वोकैबुलरी। ठीक है, राइट द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं उनके सिनोनिम्स लिखने हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ डिस्टर्ब। डिस्टर्ब मतलब खलल अंदाजी करना या कोई बीच में आकर परेशानी का बायस बनना। डिसकंटिन्यू, इंटरफेयर सिनोनिम है इसका। नॉइजेंस, परेशानी, ट्रबल या डिस्ट्रेस। रैपिड, तेज़, क्विक, स्पीडी, फास्ट। पार्सिंग, छेदना, ड्रिलिंग करना। अनमॉनिटर्ड, अनवॉच्ड या अनचेक्ड। ठीक है। क्वेश्चन बी रिलेटेड टू द वोकैबुलरी, हाउ मैनी वर्ड्स कैन यू फॉर्म फ्रॉम दीज वर्ड्स। यहाँ पर 3 वर्ड्स दिए हुए हैं, पोल्यूट, कंस्ट्रक्ट और डेवलप। वो कह रहे हैं कि आप इन 3 वर्ड्स से मज़ीद कितने वर्ड्स बना सकते हैं। ठीक है, इनको हम रूट वर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट वर्ड्स, यानी कि एक जो वर्ड है उससे कितनी उसकी शाखें निकलेंगी। ठीक है, सो द रूट वर्ड है पोल्यूट और उससे पोल्यूट से कितने वर्ड्स बनेंगे? फर्स्ट वन इज़ पोल्यूटेंट, पोल्यूशन, पोल्यूटर, पोल्यूटेड, पोल्यूटिंग एंड पोल्यूट्स। देखें ये सारे के सारे वर्ड किससे निकल रहे हैं? इस एक वर्ड से निकल रहे हैं, पोल्यूट से। तो पोल्यूट क्या है? रूट वर्ड है। ठीक है, सेकंड रूट वर्ड है कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट से कैसे निकलते हैं वर्ड्स? कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्टिवली, कंस्ट्रक्टिंग, कंस्ट्रक्टर एंड कंस्ट्रक्शनल। थर्ड वर्ड है डेवलप। डेवलप से कैसे निकलेंगे? अंडर डेवलप्ड, डेवलपमेंट, डेवलपमेंटल, डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड डेवलपर। ठीक है। क्वेश्चन सी also related to the vocabulary question. फर्स्ट वन इज पोल्यूशन। इनको रूट वर्ड्स को हमने अपने क्या करना है? सेंटेंसेस में यूज़ करना है। पोल्यूशन, आलूदगी। वी शुड डू समथिंग टू कंट्रोल नॉइज़ पोल्यूशन। हमें नॉइज़ पोल्यूशन को कम करने के लिए कुछ करना चाहिए। पोल्यूटेड, आलूदा, वी हैव टू लिव इन अ पोल्यूटेड इन एटमॉस्फेयर। कंस्ट्रक्शन, तामीर, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग कॉस्ट 10 मिलियन। अंडर डेवलप्ड, तरक्की पजीर, पाकिस्तान इज़ अ पुअर एंड अंडर डेवलप्ड कंट्री। कंस्ट्रक्टिव, आर कंस्ट्रक्टिव एफर्ट्स कैन मेक आवर कंट्री स्ट्रॉन्ग एंड प्रॉस्परस। क्वेश्चन ग्रामर यहाँ पर स्टार्ट हो गई है। ग्रामर में फर्स्ट वन है हमारा ट्रांजिशनल डिवाइस। व्हाट इज ट्रांजिशनल डिवाइस? Transitional devices are words and phrases that connect parts of your writing. They link sentences and paragraphs together to maintain continuity of ideas. ट्रांजिशनल डिवाइसेस बेटा वो अल्फाज होते हैं जो आप अपनी तहरीर में रब्त या तसलसल को कायम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी कि आप कोई लफ्ज़, आपने कोई जुमला बोला और अब अगर आप उसी से रिलेटेड कोई अगला जुमला बोलना चाह रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? अपनी बात को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम जो वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं उनको ट्रांजिशनल सेंटेंसेस या ट्रांजिशनल वर्ड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल मीन वाइल, देयरफॉर, बिसाइड एंड मोरोवर, ये सारे वर्ड्स हैं ट्रांजिशनल वर्ड्स। यहाँ पर कुछ ट्रांजिशनल वर्ड्स यहाँ पर कुछ टाइप्स दी गई हैं और उनके आगे ट्रांजिशनल वर्ड्स जो हैं वो बनाने हैं हमने। एडिशन, हमने किस चीज़ में इजाफा करना हो तो क्या करेंगे? एंड, अगेन, बिसाइड, फाइनली, फर्दर, फर्दर मोर, टू, नेक्स्ट, लास्टली, मोर ओवर, इन एडिशन, फर्स्ट,
ये सारे वर्ड जो हैं एडिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। कंपैरिजन के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? बट, येट, on the other hand, however, nevertheless, on the contrary, by comparison, where, compared to, although, meanwhile, after all, in contrast, emphasis, किसी चीज़ के ऊपर ताकीद करनी हो तो definitely, extremely, obviously, in fact, indeed, absolutely, positively, naturally, always, forever, never, certainly. सीक्वेंसिंग, किस चीज़ को तरतीब देना हो तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नेक्स्ट, देन, फॉलोइंग, दिस, नाउ, एट दिस पॉइंट, आफ्टर, आफ्टरवर्ड, सब्सिक्वेंटली, फाइनली, कॉन्सिक्वेंटली, प्रीवियसली, दस, देयरफॉर, हेंस एंड नेक्स्ट। एग्जाम्पलिफिकेशन, किसी को कोई चीज़ मिसालों से समझानी हो तो क्या यूज़ करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, इन दिस केस, ऑन दिस ओकेजन, टू डिमॉन्स्ट्रेट, टू इलस्ट्रेट, एज एन इलस्ट्रेशन। समराइजेशन, किस चीज़ को मुख्तसर करना हो? इन ब्रीफ, ऑन द होल, समिंग अप, टू कंक्लूड, इन कंक्लूजन, देयरफॉर, अकॉर्डिंगली, दस, एज अ रिजल्ट एंड कंसिक्वेंटली। ये सारे बेटा जितने भी वर्ड्स हमने किए हैं ये सारे ट्रांजिशनल वर्ड्स हैं, ठीक है। बी क्वेश्चन रिलेटेड टू द ट्रांजिशनल, रीड द सेंटेंस एंड इंसर्ट अप्रोप्रिएट ट्रांजिशनल डिवाइस इन द ब्लैंक गिवन बिलो। हाँ जी, हमने इन सेंटेंसेस को पढ़ना है और यहाँ पर बेहतर तौर पे जो ट्रांजिशनल आएंगे वर्ड्स उनको यहाँ पर पुट करना है, ठीक है। इट वॉज अनाउंस्ड दैट डॉक्टर्स सैलरीज वुड बी इंक्रीज्ड, डैश, डॉक्टर्स एंडेड देयर स्ट्राइक, ठीक है। तो यहाँ पर तीन वर्ड्स दिए गए हैं, तीन ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट वन है एज अ रिजल्ट, बी सर्टनली और सी है एंड। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा ए, एज अ रिजल्ट। अमजद इज़ एन एक्सीलेंट टीचर, dash, he explained the subject matter very well and make sure that the all student understood the concept। तो यहाँ पर बेटा आएगा फॉर एग्जाम्पल, सी ऑप्शन, ठीक है। आमना स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल, डैश, शी डज नॉट असिस्ट हर फ्रेंड्स इन लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पर क्या किया जा रहा है? एक तरह से कंपैरिजन किया जा रहा है, तो यहाँ पर हाउ एवर का वर्ड आएगा। द गवर्नमेंट हैज़ levied more taxes, dash, salary structure has not been improved, ठीक है। तो यहाँ पर बट का वर्ड आएगा कि गवर्नमेंट ने टैक्सेस तो लगा दिए हैं लेकिन यहाँ पर अभी तक सैलरी जो है वो इम्प्रूव नहीं की। फिफ्थ वन, सलमा इज़ अ गुड स्पीकर, डैश, शी ऑल्सो राइट वेरी वेल, इन एडिशन, कंसिक्वेंटली और नेक्स्ट। तो यहाँ पर इन एडिशन यानी कि ए ऑप्शन आएगा, ठीक है, कि वो लिखने के साथ साथ, बोलने के साथ साथ एक अच्छी स्पीकर भी है, इन एडिशन टू। Also related to the grammar, adverb clause. An adverb clause is a group of words which does the work of an adverb. It usually begins with the subordinating conjunction such as after, because, until, where, while, unless, as, when, since, if, though and wherever, ठीक है। कह रहे हैं कि एडवर्ब वर्ब जुमले में वर्ब के बारे में बताता है, उसकी मालूमात के दायरा कार का तयन क्यों, कब, कैसे, कहाँ करता है। मिसाल के तौर पे, ही फिनिश्ड फर्स्ट दो ही बिगेन लेट, उसने अपने काम को पहले ख़त्म कर लिया हालांकि उसने बाद में शुरू किया था, ठीक है। तो ये क्या है? एडवर्ब क्लोज है। क्वेश्चन सी रिलेटेड टू द एडवर्ब क्लोज, अंडरलाइन एडवर्ब क्लोज इन द फॉलोइंग सेंटेंस, आल्सो एनसाइकल द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। हाँ जी, हमने जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उसको हमने सर्कल करना है और जो एडवर्ब क्लोज है उसको हमने लाइन करना है, अंडरलाइन करना है एडवर्ब क्लोज को। फर्स्ट वन है यू मे सिट वेयर एवर यू लाइक। तो यहाँ पर देखें बेटा, यू लाइक ये तो है एडवर्ब क्लोज और ये जो वेयर एवर का वर्ड है ये है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सेकेंड वन, ही विल पास इफ़ ही वर्कड हार्ड, ठीक है। तो यहाँ पर इफ़ का जो वर्ड है ये है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और ही वर्कड हार्ड ये है एडवर्ब क्लोज। थर्ड वन, वी शैल वेट हेयर अनटिल यू कम। तो यहाँ पर अनटिल का जो वर्ड है ये है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और यू कम है एडवर्ब क्लोज। फोर्थ वन, आई डिड नॉट बाय इट बिकॉज इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव। बिकॉज का वर्ड जो है बेटा ये देखें दो चीज़ों को मिला रहा है तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव ये है एडवर्ब क्लोज। डू इट बिफोर यू फॉरगेट, बिफोर का वर्ड मिला रहा है दो जुमलों को तो ये सबऑर्डिनेट है और ये क्या है? यू फॉरगेट एडवर्ब क्लोज है। क्वेश्चन डी, also related to the adverb clause.
सप्लाई सूटेबल एडवर्ब क्लॉज, यहाँ पर हमने अपनी मर्ज़ी से सूटेबल एडवर्ब क्लॉज को लिखना है। फर्स्ट वन, नोबडी लाइक्स हिम, कोई भी उसको पसंद नहीं करता। क्यों नहीं पसंद करता, यहाँ पे आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं एज ही इज़ अ लायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एज ही इज़ अ लायर फर्स्ट में। सेकेंड वन, शी सिंग्स एग्जैक्टली डैश, शी सिंग एग्जैक्टली आफ्टर शी टेक्स हर मेडिसन, कि जब उसने अपनी दवाई ले ली फिर वो सही तरीके से गाने लग गई। आई विल नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं जाऊँगा बिकॉज इट इज़ रेनिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पर एडवर्ब क्लॉज आ गया बिकॉज इट इज़ रेनिंग। इट शैल रिमेन डैश, इट शैल रिमेन ये वैसे ही रहेगा अनटिल यू कम बैक, यहाँ तक कि आप वापस नहीं आ जाते। फिफ्थ वन, डैश आई स्पोक टू हिज ब्रदर, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, अपना काम ख़त्म करने के बाद आई स्पोक टू हिज ब्रदर, मैंने उसके भाई से बात की, ठीक है। क्वेश्चन ई ऑल्सो रिलेटेड टू द ग्रामर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यहाँ पर हमने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को लेना है और उनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। ये वर्ड्स दिए गए हैं, इनको सेंटेंसेस में यूज़ करना है। फर्स्ट वन इज सिंस, उस वक्त से, सिंस ही वॉज पुअर ही कुड नॉट बाय अ कार। सेकेंड वन, अनलेस, जब तक, यू कैन नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क। दो, अगरचे, दो ही इज़ पुअर ही इज़ जनरस। वाइल, जब, वाइल ड्राइविंग द कार आई सा अ ब्लैक cat crossing the road. As, he cannot buy a car as he is poor. When, जब, I come across an old friend when I went to the market. After, बाद में, I took my boys after I had finished my work. Next question is make the sentences as correct or incorrect. हाँ जी, हमने यहाँ पर करेक्ट और इनकरेक्ट बताना है। सेंटेंसेस कौन से हैं, पुट अ कॉमा टू मेक द सेंटेंस करेक्ट, और यहाँ पर कॉमा लगाना है ताकि पता चले कि सेंटेंस जो है वो ठीक कैसे करना है हमने, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज़ बिकॉज आलिया मिस्ड हर स्कूल बस शी वॉज लेट फॉर हर स्कूल। तो ये सेंटेंस जो है बेटा ये इनकरेक्ट है, यहाँ पर प्रॉपरली कॉमा यूज़ नहीं हुआ। कैसे होगा, आलिया मिस्ड हर स्कूल बस, तो यहाँ पर आएगा बिकॉज, ठीक है, बिकॉज शी वॉज लेट फॉर हर स्कूल। बिकॉज का वर्ड पहले यहाँ स्टार्ट में दिया गया लेकिन यहाँ सेंटर में आएगा। आफ्टर कलीम कम्स होम ही विल टेक यू टू द बुक शॉप। आफ्टर का वर्ड स्टार्ट में नहीं आता इसलिए ये भी रॉन्ग है। अगर हम इसको ठीक करें तो कैसा आएगा, देखें ज़रा, सॉरी कॉमा ठीक तरीके से नहीं लगाया हुआ यहाँ पे। आफ्टर कलीम कम्स होम, यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, ही विल टेक यू टू द बुक शॉप। थर्ड वन, द क्लास विल हैव द स्विमिंग लेसन इफ़ द इंस्ट्रक्टर कम्स टुमारो। ये करेक्ट सेंटेंस है। फोर्थ वन, व्हेन इट रेन्स आई विल ब्रिंग एन अम्ब्रेला टू स्कूल। तो यहाँ पर हमने करेक्ट जगह पर कॉमा लगाना है, तो व्हेन इट रेन्स के बाद कॉमा आएगा, ठीक है। ऑल्दो मिस्टर आसिफ वॉज सिक ही वेंट टू वर्क, तो ये करेक्ट सेंटेंस है, इसको ऐसे ही एज इट इज़ लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द राइटिंग स्किल्स। राइट अ पैराग्राफ ऑन अफेक्ट्स ऑफ लैंड पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ। इंसानी सेहत पर शोर की आलूदगी के असरात के बारे में एक पैराग्राफ लिखना है। सो पैराग्राफ ये है, अफेक्ट्स ऑफ लैंड पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ आर वेरी बैड एंड फॉर रीचिंग। इट कॉजेज डिफरेंट फेटल डिजीजेज लाइक cholera, influenza and measles to break out in our society. Land pollution creates an unhygienic atmosphere where germs of various diseases breed. Our efforts to improve our health will remain unsuccessful until we take measures to check land pollution. ज़मीनी आलूदगी के इंसानी सेहत पर असरात बहुत बुरे और दूररस होते हैं। ये मुख्तलिफ मोहलिक बीमारियां जैसे कि हैज़ा, इन्फ्लुएंजा और खसरा के हमारे माशरे में फूटने का सबब बनती हैं। ज़मीनी आलूदगी मुज़र सेहत माहौल पैदा करती है जिसमें मुख्तलिफ बीमारियों के जरासीम परवरिश पाते हैं। अपनी सेहत को बेहतर बनाने की हमारी कोशिशें उस वक्त तक नाकाम रहेंगी जब तक हम ज़मीनी आलूदगी को रोकने के लिए इक़दामात नहीं करते। सो स्टूडेंट, दिस वाज अ पैराग्राफ रिलेटेड टू द इफ़ेक्ट्स ऑफ लैंड पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ। आई होप आपको इस चैप्टर की बेटा अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। यहाँ पर हमने एक्सरसाइज में जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स किए हैं, जितने भी सेंटेंस फॉर्मेशन की है, ग्रामर की है, बेटा आपने उनको अच्छे तरीके से याद करना है, उनको अपनी प्रैक्टिस में लेकर आना है ताकि आपकी वोकैबुलरी इन्हांस हो, आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव हो सकें, ठीक है। बच्चों, आपके लिए हर मजमून की वीडियोस इसी यूट्यूब चैनल पर दस्तयाब हैं। आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आएँ तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली हर वीडियो से आगाह रहें। शुक्रिया।